Hello, Via. Good morning. So today we will one second. Today we will discuss about SAP PM. Okay. So I'm sharing my screen. I'm sharing my screen. Today we will discuss about the SAP PM. Okay. So I'm going to open my SAP server for your reference. I think it will wait for something. So I'm opening my SAP. So yesterday we had discussed about work center and maintenance plan and work center. Previous lecture, we had configured maintenance plan, maintenance work center, and task list. Okay, since we are discussing about this thing, so we had complete maintenance plan, and now we will discuss about work center. So in work center, there we had configured about define work center type and link to task list application. After that, we had discussed about defined field selection. Now we will go through set parameter. I want to show you the all setting related to work center. Okay, so these are our 9 settings which we will configure during this session for work center. These steps are mandatory for work center. If we will miss any of this setting while we will create work center, it will give some error. Okay, this fields is missing and this is not exit. So due to this reason, we will complete first we will configure all the setting. After that, we will try to create work center. Okay, so I'm going on set parameter. So what is set parameter? So I think it is a different thing, no need to change. And yes, it is a totally related to formulas, I think. So no need to change anything, it is a totally depends on formula. So we will take standard one. Okay, after that we will move on the next. Define employee responsible for work center. So this is the, okay, one second, define standard value key. Okay, so what is the, we will check define value key. I think what is the use of these settings, I don't know, because previously I had created so many work center, but I had not used this type of standard value key formula. Okay, so okay, we will check. Means this is the standard things, fixed phase duration, SAP 8. It is a formula. If we will click on it, we can see. Okay, so we will not go to change anything. We will only configure new things which required, because it is not mandatory, but we will we will overview what is a set parameter and what is a standard value key. After that, we will go for define employee responsible for work center. Suppose that I'm going to click on new entry, and I will choose plant as a 1000. Person will be, I will use as a SE Rahul, 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 and name of person is a Rahul. Okay, and after that I will save it. Previously, I had discussed that work center type and link with the task list application. So we will use means standard work center category is a 005, and name of this category is a plant maintenance. If we will go through this, we can check here maintenance task list, routing, and repetitive manufacturing. This is the settings. Okay, so we will go for the creation of work center. I will show each and everything. Here, the T code to create the T code is to create work center is IR01, and you can see it is an initial screen.
here you will have to choose your work plant. After that, whatever plant work center you want to create, you will have to choose the description of work center. So I am going to create pm-wc works 01, this plant maintenance work center 01, or I can choose any of them, make tech, whatever. It is totally depends on me. And I will choose work center category from drop down menu or search bar. So I will choose as a plant maintenance and click. So work center make is already exit. So due to this region, HEMM, okay, I will take as a, so maintenance work center. So you can see here basic data, default value, capacity scheduling, costing, technology. These are the fields in I have in previously I had discussed defined field selection. After that we have choose configure set parameter. So this is the parameter, okay, and this is the standard value key of. So I will again I will show you, this is a standard value key, means standard key formula, okay. After that I had configure define employee responsible. So in this I had defined my own self as a plant 1000. You can see as a 1000 and name of the person is a 1000 and person RAH, okay, Rahul, okay. So I had defined. After that, create default work center. I will go through this, and this is our default work center. So here you can means from here we can create, okay, but no need to go through this transaction, only we can check, okay. We will create from here. So this is how we had complete our 5 step define work center type and link to task list application, define field selection, set parameter, define standard value key, define employee responsible for work center, and create default work center. So ये हमने 5 स्टेप कंप्लीट किया. जो ये दो हाईलाइटेड सेटिंग्स हैं, ये ECC 6.0 में नहीं मिलेंगे, बट वी करंटली आई एम यूजिंग ECC EHP 7 ड्यू टू दिस रीजन. 2 settings are there. If I will go through the ECC 6.0, this setting will be not there. So that's why I have highlighted. After that I will we will go through the work center task list data. Here we will configure some new things as a, this is our main heading, okay. So we will here what we will define task list usage, maintain control key, and configure screen sequence. So in this node we will configure 3 things. So ये क्या है, the task list data. So define task list users key. So here I will try to overview it. So we will use only maintenance task list. So usage will be 4. If you will go through here, you can see here, when you will go through the next one, here you can see in basic data tab usage will be, if you when आप जब भी वर्क सेंटर क्रिएट करेंगे ना, तो बेसिक डेटा टैब में आपको यूसेज मिलेगा. तो यूसेज देखिए ये हम यूज करते हैं हमेशा, 4th 1 यूज करते हैं ओनली मेंटेनेंस टास्क लिस्ट. अगर आप इसको सेलेक्ट करके और इसका यूसेज देखिएगा तो आपको यहाँ दिखेगा, ओके. 3 डिफरेंट टाइप के यूसेज हैं. जब इस पे आप क्लिक करिएगा तो जनरल मेंटेनेंस टास्क लिस्ट, इक्विपमेंट टास्क लिस्ट और फंक्शन लोकेशन टास्क लिस्ट, ये इसका यूसेज है, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड 1 यूज करेंगे, इसमें नो नीड टू चेंज एनी थिंग्स, नो नीड टू कॉन्फ़िगर न्यू थिंग्स. ये स्टैंडर्ड 1 हम हमेशा लेते हैं. और यहाँ मैं लूंगा 004, प्रेस इंटर. ये आप यहाँ देखेंगे ओनली मेंटेनेंस टास्क लिस्ट आ गया, ओके. आफ्टर दैट आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट सेटिंग, मेंटेन कंट्रोल की. सो देखिए कंट्रोल की मैंने आपको जब मैं आपसे मेंटेनेंस प्लान सॉरी मेंटेनेंस ऑर्डर आपसे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि 3 जो स्टैंडर्ड कंट्रोल की है वो PM01 है, PM02 है, PM03 है. 3 स्टैंडर्ड जो 3 स्टैंडर्ड कंट्रोल की होता है वो PM01, PM02 और PM03 होता है. जो जिसमें कि PM01 जो होता है वो इंटरनल वर्क सेंटर पे काम होता है, और ये जो PM02 और PM03 जो होता है वो एक्सटर्नल वर्क सेंटर पे होता है,
ठीक है। ये जो PM02 जब हम यूज करते हैं वो एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट के लिए एक्टिविटी में करते हैं, मतलब जो भी वर्क होगा एक्सटर्नली होगा, और ये भी एक्सटर्नली होगा, लेकिन ये सर्विस वर्क होगा। सो ड्यू टू दिस रीजन जब कभी भी आप वर्क सेंटर क्रिएट करेंगे तो PM01 ही कंट्रोल की आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ यूज होता है, ये कॉस्टिंग टैब में यूज होता है। ठीक है, तो PM0, सॉरी सॉरी, ये कहीं इसमें होता है, मैं दिखा रहा हूँ। सो आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट। आई एम पैरेलली आई एम क्रिएटिंग दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड वैल्यू की, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू की आपको मैंने दिखाया था, पैरामीटर के ठीक नीचे एक सेटिंग्स थी स्टैंडर्ड वैल्यू की। फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू की। बहुत लोगों ने इसको चेंज कर दिया है ड्यू टू दिस रीजन, इजी नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू की क्या होता है मैं गूगल से सर्च करके दिखाता हूँ, क्योंकि किसी ने चेंज कर दिया सब कुछ। सो इट इज अ वेरी टफ टू, ओके, STAND स्टैंडर्ड VLA की वैल्यू की इन SAP PM इन वर्क सेंटर। क्योंकि देखिए ये क्या होता है ना, सर्वर जो होता है, मतलब कुछ न्यूअर लोग होते हैं ना, उनको कुछ मालूम नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वो उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है कि उसमें से कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू की है। तो हम लोग को ये देखना होगा कि स्टैंडर्ड वैल्यू की क्या है वर्क सेंटर में। यहाँ से मिलेगा हमको आंसर, देखते हैं। किसी ने चेंज कर दिया है स्टैंडर्ड वैल्यू के कॉन्सिस्ट 6 वैल्यू, और बट हम लोग को तो नाम चाहिए ना, क्या नाम है उसका, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या, 6 पैरामीटर है। ये क्या करते हैं ना लोग, मतलब चेंज कर देते हैं ड्यू टू दिस रीजन। ये मशीन सेटअप, लेबर सेटअप, ओके, आई विल गो फॉर वर्क सेंटर क्रिएशन इन वर्क सेंटर क्रिएशन। सो इन वर्क सेंटर क्रिएशन में मैं आप दिखा दे रहा हूँ बाकी लोग कैसे क्रिएट करते हैं इसको। देखिए ERP रूप वाले ने कैसे क्रिएट किया है वर्क सेंटर को। इनिशियल में आए हैं ये, देखिए SAP 0 करके फॉर्मूला है, SAP 0, बट SAP 0 नो स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ हम स्टैंडर्ड वैल्यू मेंटेनेंस में हम क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू की। ये स्टैंडर्ड वैल्यू की कहाँ से आ रहा है, ये देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है स्टैंडर्ड वैल्यू की। ये स्टैंडर्ड वैल्यू की से यहाँ से वो वैल्यू आ रहा है। आपको SAP 0 नॉन SAP वैल्यू, ये वाला हम वैल्यू वहाँ असाइन कर रहे हैं। ठीक है, हर एक फील्ड का कुछ ना कुछ यूज है। फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये देखिए कंट्रोल की क्या दिखा रहा है, PM05, बट वी विल नॉट यूज दिस वन, वी विल यूज PM01। यहाँ यूज होता है कंट्रोल की का, जो आप यहाँ पे कंट्रोल की डिफाइन कर रहे हैं। देखिए टास्क लिस्ट यूसेज तो मैंने आपको बता दिया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट इट कि वी विल यूज 004 फॉर टास्क लिस्ट यूसेज की। बट मेंटेन कंट्रोल की मैंने आपको बताया कि यहाँ 3 टाइप के स्टैंडर्ड कंट्रोल की हैं। नो नीड टू क्रिएट न्यू वन, नो नीड टू क्रिएट, ओनली यूज स्टैंडर्ड थिंग्स। ओके, बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाई वी आर यूजिंग, बट ऑलवेज मैं जानता हूँ एज पर माई नॉलेज, और जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में यूज होता है वो स्टैंडर्ड वही यूज होता है। और मैं आपको बता दूं कि PM01 हम यूज करते हैं अपने वर्क सेंटर के साथ। तो यहाँ मैं असाइन करूंगा PM01, ओके, और प्रेस इंटर करूंगा, और देन मैं जाऊंगा कैपेसिटी के लिए। कैपेसिटी में यहाँ फॉर्मूला पूछता है, आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ फॉर्मूला क्या यूज होता है। देखिए ये भी वर्क सेंटर यूज किया है कैपेसिटी। अदर फार्मूला में इनको ने अदर फार्मूला में इन्होंने क्या यूज किया है, इस फार्मूला में SAP 08 यूज किया है। तो मैं SAP 08 मैं भी एज इट इज यूज कर दूंगा। ये मेरा हो गया प्रेस इंटर। सेटअप फार्मूला मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरे को बोलता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए क्या होती है इसकी, कैपेसिटी की प्लानिंग होती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैपेसिटी प्लानिंग कैसे होती है। तो फैक्ट्री कैलेंडर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और आपको जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं वो दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ से कैपेसिटी प्लानर ग्रुप आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्फ़िगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो बस डिफ़ॉल्ट वन कोई भी आप ले लीजिए, नो नीड टू वरी अबाउट इट। उसके बाद यहाँ देखिए आपका जो टाइमिंग है कैपेसिटी, मतलब आपका सपोज दैट कि अगर आपकी कंपनी का काम सुबह 8 से 5 तक चलता है, मतलब पूरा 9 घंटे की चलती है, तो आपको इस तरह से डिफाइन करना है। ठीक है, ये होगा आपका फिनिशिंग वर्क सुबह 8 बजे से लेके
5 बजे तक, उसमें से आपको ये जो करना है ये 0 0 रहेगा, और आपको यहाँ 59 मिनट का और 59 सेकेंड का एक क्या करना है आपको, देखेंगे तो ये 8 घंटे का ऑपरेटिंग टाइम बताएगा। अब उस वर्क सेंटर का जो आपका यूटिलाइजेशन होगा वो 100% आप करना चाहेंगे। कोई भी चाहता है कि मेरे जो भी मेरा वर्क सेंटर है, जो भी मेरा जिस प्लेस पे भी हम वर्क कर रहे हैं उसका कैपेसिटी जो हो वो 100% हो। और आप कितना मैन पावर आप डिफाइन करना चाहते हैं वो भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने एक मैन पावर डिफाइन किया तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग टाइम 8 आवर और कैपेसिटी विल बी 8। अगर आप 4 लोग को डिफाइन करते हैं या 5 लोग को, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये कैपेसिटी 40 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि एक के लिए 8 घंटे तो 5 के लिए 8 5 40, मतलब 8 मल्टीप्लीकेशन बाई 5, तो वो 40 आवर्स हो जाएगा। देन गो बैक भैया, गो बैक, और आफ्टर दैट गो फॉर शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में हमको कुछ नहीं करना है, और डायरेक्ट हम आएंगे कॉस्टिंग में। और कॉस्टिंग में हमको यहाँ क्या करना होता है, अपना हमको यूज करना होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के लिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भैया। तो भैया हम यहाँ पे एक कॉस्ट सेंटर अपना डिफाइन कर देंगे। तो हमको देखना होगा कि हमारा प्लांट 1000 के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग एरिया हमारा कितना है, 1000 है। मैं यहाँ कंट्रोलिंग एरिया 1000 यूज करके मैं सर्च करूँगा, देखता हूँ कोई कॉस्ट सेंटर है भी या नहीं। तो मैं कोई भी कॉस्ट सेंटर यूज करने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट मैं यही कॉस्ट सेंटर 1000 यूज करूँगा, और मैं प्रेस इंटर कर दूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। दिस इज हाउ वी हैड क्रिएट आवर वर्क सेंटर HEMM। सो इस वर्क सेंटर को मैं अपने इक्विपमेंट, जो मैंने इक्विपमेंट क्रिएट किया था IE02 में, जो मैंने इक्विपमेंट क्रिएट किया था 7 से 7526 में, मैं यहाँ असाइन करूँगा। आप देखिए 26 नहीं 36। ओ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मेरा स्ट्रक्चर लिस्ट नहीं ओपन है। ओके, सो मैं यहाँ से पहले IH01 से स्ट्रक्चर लिस्ट ओपन करूँगा। SEL, प्रेस इंटर, इक्विपमेंट इंस्टॉल, इक्विपमेंट टीआर की बॉम्ब एक्सप्लोजन से मैं एक्सक्यूज करूँगा, और यहाँ मैं एक्सपेंड कर दूंगा ऑल पे। तो यहाँ मुझे इक्विपमेंट नंबर में 257528। ओके, सो 7528 में मैं अपना वर्क सेंटर असाइन कर सकता हूँ। वर्क सेंटर देखिए इक्विपमेंट के साथ असाइन होता है। तो IE02 से मैं जाऊंगा चेंज बोर्ड में, और ये मैं लूंगा एक इक्विपमेंट 7528। इसमें मैं क्लिक करूंगा और मैं लोकेशन में आऊंगा। तो यहाँ मैं अपना वर्क सेंटर HEMM मैं यूज कर सकता हूँ, मेंटेनेंस वर्क सेंटर। अब मैं यहाँ आऊंगा और मैं यहाँ मैकेनिक जो मेन वर्क सेंटर मेरा है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ HEMM। प्रेस एंटर कर दूंगा, मैं सेव कर दूंगा। अब मैं कुछ भी, मेरा इक्विपमेंट भी क्रिएट हो गया। मेरा इस इक्विपमेंट में मैंने क्या किया, मेरा इक्विपमेंट भी क्रिएट है, इसका इक्विपमेंट नंबर ये है, मेरा मेंटेनेंस प्लान है, वर्क सेंटर है। ऑर्गेनाइजेशन टैब में आप देखेंगे तो यहाँ मेन वर्क सेंटर में यूज किया हूँ, प्लानर ग्रुप यूज किया हूँ, प्लानिंग प्लांट यूज किया हूँ, और साथ ही साथ मैंने अपना वर्क सेंटर भी असाइन किया है SCL-PL0 प्लांट 01, मतलब सत्यार्थ बूमर लिमिटेड के अंदर में प्लांट 01 है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज ही कर सकता हूँ। IL02 में जाके PL01 प्रेस इंटर कर दूंगा। फंक्शन लोकेशन फॉर PL0 प्लांट 1, ठीक है, प्लांट 01।
प्लांट 01 के लिए मैंने ये फंक्शन लोकेशन क्रिएट किया था, फंक्शन लोकेशन, और मैं पूरी तरह से सही कर देता हूँ, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखिएगा तो आपका जो लोकेशन है ये मैं दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर टैब में, आप देखिएगा इसको रिफ्रेश करके तो आपको नए तरीके से दिखेगा। ये क्या दिख रहा है, फंक्शन लोकेशन फॉर प्लांट 1, PL01 मैंने इसीलिए किया था, प्लांट 01। तो ये देखिए इस तरह से हमने फंक्शन लोकेशन क्रिएट किया, इक्विपमेंट क्रिएट किया, बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट किया और वर्क सेंटर क्रिएट किया। इससे पहले हमने आपको बताया था मेंटेनेंस प्लान के बारे में। अगर मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करने जा रहे हैं, IP01 टी कोड भी होता है, IP41 से सिंगल साइकिल प्लान क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से प्लान कैटेगरी आप मेंटेनेंस ऑर्डर लेंगे तो वो जो कॉल ऑब्जेक्ट होगा वो मेंटेनेंस प्लान का ऑर्डर होगा, और यहाँ से आप मेंटेनेंस आइटम भी कर सकते हैं असाइन। और मैंने मेंटेनेंस आइटम भी क्रिएट करके दिखाया था, बट ये सिस्टम किसी कारण से रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेंटेनेंस प्लान, वर्क सेंटर, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। ठीक है, अब हम वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट नोड, टास्क लिस्ट। तो टास्क लिस्ट के नोड पे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैं आप नेक्स्ट पे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टास्क लिस्ट में हमको कितनी सेटिंग करनी है। तो भैया मैं बता दूं, टास्क लिस्ट में ये 4 सेटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा और टास्क लिस्ट में कोई ज़्यादा सेटिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप टास्क लिस्ट, सपोज दैट इक्विपमेंट टास्क लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, IA01 एक टी कोड होता है। इस इक्विपमेंट में आपको क्या जरूरत है, इस इक्विपमेंट के लिए मैं सपोज दैट कि मेरे पास जो इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट में मेरे को क्या जरूरत है, इक्विपमेंट नंबर जरूरत है, और उसके बाद प्रोफाइल और चेंज नंबर और आज का डेट। मैं चाहूँ तो मैं प्रेस इंटर करूँ तो भी मैं इक्विपमेंट टास्क लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यूसेज जो होगा वो कॉन्फ़िगर करेंगे और बाकी की चीजें करेंगे। तो फर्स्ट मैं कॉन्फ़िगर करूंगा और देन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये टास्क लिस्ट कैसे क्रिएट होता है। तो जितनी जरूरत की चीजें हैं यहाँ हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन नोड में जा रहा हूँ फिर से, प्लांट मेंटेनेंस एंड कस्टमर सर्विस, मेंटेनेंस प्लान, वर्क सेंटर, टास्क लिस्ट। हेयर मैं क्या करूंगा, टास्क लिस्ट का जो नोड है उसको एक्सपेंड करूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू कॉन्फ़िगर। सो मैं क्या करूंगा, जनरल डेटा में जाऊंगा। सो मेंटेनेंस टास्क लिस्ट स्टेटस, सो मेंटेनेंस टास्क लिस्ट स्टेटस यहाँ से पता चलेगा। तो ये देखिए, जब आप मेंटेनेंस टास्क लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसका स्टेटस क्या रहेगा, क्रिएट फेज, रिलीज फॉर ऑर्डर, रिलीज फॉर कॉस्टिंग, रिलीज जनरल। सो हम ऑलवेज जो भी यूज करते हैं भैया, ये ही यूज करते हैं, रिलीज जनरल। हम ऑलवेज ये ही स्टेटस यूज करते हैं और कोई भी हम इस यूज नहीं करते हैं ये। सो इन दिस केस ये इट इज प्री डिफाइंड, सो नो नीड टू चेंज एनीथिंग। बस अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप कर सकते हैं। फिर देन मैं क्या करूंगा, डिफाइन टास्क लिस्ट यूसेज। तो मैं यहाँ से आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि टास्क लिस्ट का जो यूसेज है वो क्या होगा। तो हम मैं आपको बता दूं कि प्लांट मेंटेनेंस में टास्क लिस्ट के टर्म्स में जो टास्क लिस्ट यूसेज हम यूज करते हैं वो करते हैं 4 नंबर, प्लांट मेंटेनेंस फॉर मटेरियल, वेंडर एंड मैन्युफैक्चर। ओके, सो ये हम यूज करते हैं भैया, हमेशा हम ये करते हैं 4th नंबर। ओके, एंड आई विल गो फॉर बैक, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, सो नो नीड टू चेंज एनीथिंग, ओनली वी विल अडॉप्ट दिस वन। ओके, जो सेटिंग्स मैं यहाँ डिफाइन मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सेम सेटिंग्स का यूज करके मैं टास्क लिस्ट क्रिएट करूंगा। कॉन्फ़िगर प्लानर ग्रुप, अब टास्क लिस्ट के लिए भी प्लानर ग्रुप हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम चाहें तो न्यू वन कर सकते हैं कि प्लांट 100 करके प्लानर ग्रुप में 100 या 1 1 या 111 कुछ भी, या SEIL करके सत्यार्थ उमर लिमिटेड, और ये प्लानर ग्रुप 1 करके भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, मैं सेव कर सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं इसके बारे में। सो मैं जाऊंगा बैक। अब मैं बैक आने के बाद अब क्या करूंगा, मैं कंट्रोल डेटा में आऊंगा। सो कंट्रोल डेटा में हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, डिफाइन नंबर रेंज फॉर नंबर रेंज। ओके,
यहाँ क्या दिखाया मैंने, नंबर रेंज फॉर टास्क लिस्ट, नंबर रेंज फॉर इक्विपमेंट, नंबर रेंज फॉर फंक्शन लोकेशन। सो मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा, डिफाइन नंबर रेंज फॉर जनरल टास्क लिस्ट। देखिए मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, प्लांट मेंटेनेंस में पीएम मॉड्यूल में 3 डिफरेंट टाइप के टास्क लिस्ट होते हैं। एक टास्क लिस्ट होता है इक्विपमेंट के लिए, एक टास्क लिस्ट होता है फंक्शन लोकेशन के लिए, एक टास्क लिस्ट होता है जनरल, जो जनरल एक्टिविटी में हम यूज करते हैं। टास्क लिस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, नंबर ऑफ सेट ऑपरेशन होता है। सो आई विल क्रिएट टास्क लिस्ट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट टास्क लिस्ट। ओके, सो यहाँ देखिए ये क्या है, डिफाइन नंबर रेंज फॉर टास्क लिस्ट। सो आई विल गो थ्रू दिस वन एंड हियर वी विल चूज चेक इंटरवल। सो ये नंबर रेंज जो है वो टास्क लिस्ट का है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि नंबर रेंज कभी भी प्रोडक्शन ऑर्डर में होता है, और उसके लिए जो टी कोड होता है वो कभी भी प्रोडक्शन ऑर्डर में जब करेंगे तो OIL 4 टी कोड यूज करिएगा, तो आप वहां से रेंज नंबर रेंज दे पाइएगा जनरल टास्क लिस्ट के लिए। यहाँ से आप इंटरवल चेक कर सकते हैं, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ से नंबर रेंज का स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं, और कुछ। लेकिन नो नीड टू चेंज नंबर रेंज स्टेटस फॉर एनी ऑफ एक्टिविटी। ओके, किसी में भी नंबर रेंज का स्टेटस चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन एक्टिविटी करते जाएंगे वो एक्टिविटी करता जाएगा। ठीक है, तो और इसमें कुछ भी नहीं है। देन देन मैं गो बैक जाऊंगा, और यहां से मैं डिफाइन करूंगा नंबर रेंज फॉर इक्विपमेंट टास्क लिस्ट। सो इसका नंबर रेंज देखिएगा, अगर पहले आप एनआर स्टेटस देखिए तो इसका 77 है। अगर मैं किसी भी इक्विपमेंट के लिए क्रिएट करूंगा तो ये 78 हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो क्रिएटेड है टिल नाउ, जो भी इंटरवल क्रिएट किए गए हैं उसमें 77 टास्क लिस्ट क्रिएट किए जा चुके हैं इक्विपमेंट के लिए। लेकिन मैं जब उसको नया क्रिएट करूंगा तो वो 71 हो जाएगा। ठीक है, तो नो नीड टू चेंज एनीथिंग। ये सारी चीजें कट ओवर एक्टिविटी में मेंटेन की जाती है। यहाँ इंटरवल फंक्शन लोकेशन के लिए देखेंगे तो फंक्शन लोकेशन के लिए 39 टास्क लिस्ट क्रिएट किया जा चुका है। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन टास्क लिस्ट फॉर योर प्लांट। ओके, सो आई विल यूज टी कोड IA01 फॉर इक्विपमेंट। ओके, दिस IA01 टी कोड इज फॉर क्रिएट इक्विपमेंट टास्क लिस्ट। अगर आपको फंक्शन लोकेशन के लिए क्रिएट करना है, IA11 यूज करेंगे तो ये क्रिएट होगा क्रिएट फंक्शन लोकेशन टास्क लिस्ट। उसके बाद ही आप क्रिएट कर सकते हैं IA05 फॉर जनरल टास्क लिस्ट। तो ये जो जनरल टास्क लिस्ट होता है ये न तो इक्विपमेंट स्पेसिफिक होता है, ना फंक्शनल स्पेसिफिक होता है। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है जनरल टास्क लिस्ट। ओके, ये आप किसी भी इक्विपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, किसी फंक्शन लोकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी असेंबली के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई इक्विपमेंट टास्क लिस्ट क्रिएट कर दिया, सपोज दैट IA01 से, तो आपको यहाँ इक्विपमेंट नंबर यूज करना पड़ेगा एंड देन प्रेस इंटर। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट इक्विपमेंट टास्क लिस्ट। हियर आप देखेंगे ग्रुप ऑटोमेटिक सिस्टम से क्रिएट हो गया। ग्रुप का ही मतलब होता है, अब तक जो नंबर रेंज का स्टेटस था वो 77 था, जब मैं इसको क्रिएट कर दूंगा तो ये जो टास्क लिस्ट होगा वो 78 नंबर का होगा। अब हेयर group counter 1 and name of this equipment is a computer Dell। तो मैं यहाँ करूंगा टास्क लिस्ट फॉर कंप्यूटर, टास्क लिस्ट फॉर कंप्यूटर। इट इज जस्ट डिस्क्रिप्शन, ये कुछ और नहीं है, डिस्क्रिप्शन है। और वर्क सेंटर में अपना यूज करूंगा, अपना प्लांट यूज करूंगा, और यहाँ यूसेज में यूज करूंगा। यहाँ से यूसेज में मैं आपको बताया था मैं 4 लूंगा, प्लांट मेंटेनेंस। प्लानर ग्रुप मैंने आपको बताया था कि मैंने एक डिफाइंड किया है प्लानर ग्रुप, और मैं यहाँ से चूज करने की कोशिश करूंगा, और वो नहीं है तो ये मैं SEL करूंगा, सत्य अर्थ मूवर लिमिटेड। उसके बाद स्टेटस मैंने आपको बताया था कि 4 रहेगा हमेशा, जनरल, जनरल हमेशा लेंगे, रिलीज जनरल। उसके बाद अगर आपको यहाँ मेंटेनेंस स्ट्रेटजी यूज करनी तो करिए, नहीं करना तो कोई नहीं जरूरत है। देन क्लिक करिए ऑन ऑपरेशन पे। ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका वर्क सेंटर भी HEMM है, और ऑटोमेटिक कंट्रोल की जो आपने वर्क सेंटर में असाइन किया था वो यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पे सपोज दैट कि मैं कंप्यूटर में क्या चेक करूंगा, जो भी मेरे को ऑपरेशन मेंटेन करना है, सपोज दैट क्लीन क्लीन कंप्यूटर डेस्कटॉप, कंप्यूटर डेस्कटॉप। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन क्या है, क्लीन मॉनिटर, मॉनिटर मॉनिटर एरिया। उसके बाद क्लीन
clean CPU. Okay, I have only 10 minutes. Clean UPS. सो हम क्या कर रहे हैं, ये सारे ऑपरेशन लिख रहे हैं कि हमारा इस कंप्यूटर के लिए टास्क लिस्ट क्या है कि हमको कंप्यूटर का डेस्कटॉप भी क्लीन करना है, मॉनिटर एरिया भी क्लीन करना है, सीपीयू को भी क्लीन करना है, यूपीएस भी क्लीन करना, और साथ ही साथ हमको क्लीन करना है टेबल का। मैं एक जनरल चीज ले रहा हूँ और वो कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। क्यों? अगर आप किसी, आप देखिए, जो भी प्रिकॉशन करने हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इस कंप्यूटर पे, वही होता है टास्क लिस्ट। नंबर ऑफ स्टेप को ही बोलते हैं टास्क लिस्ट। ठीक है, बस आप कुछ नहीं करना है, बैक जाना है और बस आपको सेव कर देना है। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर टास्क लिस्ट। इक्विपमेंट टास्क लिस्ट क्रिएटेड हो गया। लेकिन अगर अब आके आप अगर नंबर रेंज देखिएगा, जनरल टास्क लिस्ट का नंबर रेंज देखिएगा यहाँ से, इक्विपमेंट टास्क लिस्ट का नंबर रेंज, तो पहले 39 या 7 जो भी रहा होगा, अब वो एक बढ़ गया होगा, अब 78 हो गया। पहले 77 था, अब 78 हो गया। तो यही नंबर रेंज स्टेटस है और कुछ नहीं है। इससे इससे इसके अलावा कुछ भी चीजें इसमें नहीं। ठीक है, तो इस दिस इज हाउ, इस प्रकार से हमने टास्क लिस्ट को भी कॉन्फ़िगर कर लिया। और प्रोडक्शन रिसोर्स टूल की बात आती है तो प्रोडक्शन रिसोर्स टूल में कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। ये एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। अगर सपोज दैट कोई आपको इक्विपमेंट एज ए क्रिएट करना है, IE01 ठीक है, तो आप यहाँ पे जो इक्विपमेंट की कैटेगरी है वो आप क्या लेंगे, पी लीजिएगा, पी पर PRT, ये स्टैंडर्ड है, नो नीड टू चेंज। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आप यहाँ पे एक यूज करिएगा, सपोज दैट की ड्रिल मशीन, इस छोटे इक्विपमेंट के लिए होता है। आप 1000 मेंटेनेंस प्लान डालिएगा, प्रेस इंटर करिएगा, तो ये क्या बोलता है, ये भी इंडिकेटर पूछ रहा है। ठीक है, वर्क सेंटर आप ये लीजिए, वर्क सेंटर आप HEMM लीजिए, ये HEMM एरिया में है मेंटेनेंस वर्क सेंटर पे। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, अपना ये प्लांट और प्लानिंग प्लांट आपको असाइन कर देना है, और कुछ नहीं, स्ट्रक्चर में यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे असाइन। तो यहाँ सुपीरियर इक्विपमेंट पे इंस्टॉल होगा, फंक्शन लोकेशन पे इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि ये पर्ट है। ठीक है, एडिशनल डेटा में आप आके देखिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर्ट का डिटेल यहाँ मिलेगा। तो टास्क लिस्ट का यूसेज क्या है, पर्ट आप क्यों यूज कर रहे हैं, यही सॉरी फॉर दैट, डिफाइन पर्ट ऑथराइजेशन ग्रुप। तो यहाँ से देख सकते हैं कि डिफाइन दो तरह के ग्रुप ऑलरेडी दिए हुए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, नो नीड टू चेंज एनी। आप कुछ लेके इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको इन क्रिएशन, रिलीज फॉर रिसोर्स प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, तो ये प्रोसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज होता है। और डिफाइन टास्क लिस्ट यूसेज की, तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको यूसेज की मिल जाएगा। तो यहाँ आप किस लिए यूज कर रहे हैं, प्लानिंग रेट, प्रोडक्शन रेट प्लानिंग के लिए, या मेंटेनेंस के लिए, या किस लिए यूज कर रहे हैं, ओनली इंस्पेक्शन के लिए। तो जैसा आपका यूज है उसके अकॉर्डिंग से यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप नंबर 4 के लिए करना चाहते हैं मेंटेनेंस टास्क लिस्ट के लिए, तो आप मेंटेनेंस टास्क लिस्ट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ से ग्रुपिंग की 1 ग्रुपिंग की 2 जो भी आपको सेलेक्ट करना है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा ग्रुपिंग में रखना है, तो आपको ड्रिल में रखना है। फिर उसके बाद प्रेस एंटर। कंट्रोल की आपको क्या रखना है, PM01 मैंने बताया था, प्रेस एंटर। डज नॉट, कंट्रोल की नहीं है, एग्जिट कर रहा है। ठीक है, ओके, कंट्रोल की नहीं है तो आप ये वाला कंट्रोल यूज करिए। ठीक है, वो अलग कंट्रोल है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट की क्या है, यहाँ से सर्च करिए। स्टैंडर्ड टेक्स्ट की कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए कि यहाँ से इसको मत सेलेक्ट करिए, कोई बहुत ज़्यादा इससे डिफेक्टिव मतलब डिपेंडेंसी नहीं। देन आप एडिशनल डेटा में आइए, कुछ नहीं करना है आपको, और डायरेक्ट सेव कर दीजिए। अगर आपको पता है कि इसका वारंटी इनहेरिएंट वारंटी या पास ऑन वारंटी है, कुछ भी ऐसा वारंटी आपका स्टार इंड, जैसे सपोज दैट कि इस महीने में आपका, पिछले साल आपने वारंट खरीदा था तो 30/9 को इसका वारंटी 1 साल पे खत्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस ये सेव कर देना है, मास्टर वारंटी बस सेव कर दीजिए। इस तरह से आपने क्या किया, इक्विपमेंट एज ए पर्ट क्रिएट कर लिया। अगर आप इसको चेंज मोड में जाके देखिएगा तो आपको चेंज मोड में दिखेगा। तो यही आपका पर्ट है। पर्ट मतलब प्रोडक्शन रिसोर्स टूल है, एक एडिशनल टैब इसमें ऐड हो जाता है, और कुछ भी चीजें नहीं है इसमें। इसका यूज प्रोडक्शन वाले करते हैं, अपन लोग का इसमें PM में कोई यूज नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ भैया वी हैड कंप्लीट आवर दिस नोड।
मेंटेनेंस प्लान, वर्क सेंटर, टास्क लिस्ट एंड पीआरटी, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे नोड को पूरी तरह से कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब इसमें कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन मैंने अब यही स्टेप मैं अब यहीं पे स्टॉप करूंगा। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन देन यू कैन कनेक्ट मी, यू कैन पिंग मी एनी टाइम। ओके, नो नीड टू वरी। आपको कुछ भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसमें बेसिक सेटिंग क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम प्लांट सेक्शन पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। अगर हाँ, इसलिए मैंने नहीं किया। मेंटेनेंस प्लानर ग्रुप भी हम पहले से ही रहता है इसमें, अगर हम चाहते तो कर सकते, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये पहले से ही कॉन्फ़िगर रहता है। एबीसी इंडिकेटर भी रहता है, ABCD तीन वाले, तीन ही हम यूज करते हैं, ABC तीन ही हम यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है ना, ये सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग यूजर आके क्या करते हैं, जो अपनी मर्जी से 1 2 3 ABCD कुछ भी असाइन करते हैं। लेकिन एबीसी इंडिकेटर जो होता है ना, वो 3 स्टैंडर्ड होता है, ABC ही ये स्टैंडर्ड 1 होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट हमारा जो SPRO का कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रोसेसिंग। मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रोसेसिंग में आपको मिलेगा, यहाँ दिखा रहा हूँ, प्लांट मेंटेनेंस एंड कस्टमर सर्विस। मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रोसेसिंग में नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रोसेसिंग पे होगा। सो फ्रॉम टुमारो एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रोसेसिंग। ओके, सो और इससे पहले हमने 2 नोट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि मास्टर डेटा में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ये हम कर चुके हैं। ये इस तरह से हमारा सारा ऑलमोस्ट मास्टर डेटा क्रिएट हो गया। हमने आज मेंटेनेंस प्लान के साथ साथ मेंटेनेंस आइटम भी आपको क्रिएट करके दिखाया था। तो यहाँ पे आप क्या मैंने दिखाया, मेरे को मेंटेनेंस आइटम। तो ये सारी चीज क्या होती है, मास्टर डेटा होता है। मास्टर डेटा कब क्रिएट करते हैं, फाइनल प्रिपरेशन के बाद, डायरेक्ट गो लाइव से पहले डायरेक्ट प्रोडक्शन सर्वर में हम क्रिएट करते हैं। तो मास्टर डेटा से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग्स होगी वो होगी मेंटेनेंस प्रोसेसिंग से। मेंटेनेंस की जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग मेंटेनेंस प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रोसेसिंग से रिलेटेड हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें 2 चीजें आती हैं। मेंटेनेंस नोटिफिकेशन के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नोटी नोटी नोटिफिकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और हम मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो 2 कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रोसेसिंग का होगा। ओके, सो इस तरह से हमने जो भी होगा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रोसेसिंग, और यहाँ पे 2 तरह के नोड है। एक तो है मेंटेनेंस एंड सर्विस नोटिफिकेशन, एक है मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑर्डर। इस सेटिंग्स में हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके अलावा ये मेंटेनेंस रोल, सिस्टम एनहेंसमेंट, ट्रांसफर, वारंटी क्लेम प्रोसेसिंग एंड वारंटी क्लेम्स मैनेजमेंट, इट इज ए डिफरेंट थिंग। ये वारंटी क्लेम प्रोसेसिंग एक अदर मॉड्यूल ही है, जो एज पर कंपनी के क्लाइंट के बिजनेस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम जो कंपनी सपोज दैट वारंटी के साथ डील करती है, सपोज दैट कि कोई बैटरी की कंपनी है एमरॉन, तो वो वारंटी के साथ जब डील करते हैं तो हम उनके लिए वारंटी क्लेम प्रोसेसिंग क्या करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। या वर्क क्लियरेंस मैनेजमेंट उनके लिए करते हैं जो सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ सेफ्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो अपने बिजनेस में उनका काम बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत रिस्की होता है, और वो क्या करते हैं कि जब वर्क क्लियरेंस मैनेजमेंट उनके लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये सिस्टम ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, ये इट इज ए डिफरेंट थिंग। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, और मेंटेनेंस रोल में भी कुछ भी नहीं। तो मेंटेनेंस रोल जो होता है, ये मेंटेनेंस रोल ये बेसिस टीम के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ये प्रीवियसली मैंने बेसिक सेटिंग में भी आपसे डिस्कस किया था। तो दिस इज हाउ वी हैव ओनली वन कॉन्फ़िगरेशन नोड, मेंटेनेंस एंड सर्विस प्रोसेसिंग। इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को मेजर चीजें कॉन्फ़िगर करना है। ओके भैया, बाय, टेक केयर, वी विल कनेक्ट टुमारो।